So good afternoon, ladies and gentlemen, and I welcome you all to the Indian Army's press preview for the Republic Day Parade 2026. जैसा कि आप सभी को पता है कि रिपब्लिक डे परेड से पहले तीनों सेनाएं परेड में भाग लेने वाले कंटिंजेंट और इक्विपमेंट के बारे में हमारे मीडिया फ्रेंड्स को प्रेस ब्रीफ द्वारा अवगत कराते हैं। इसी के तहत आज का ये प्रेस ब्रीफ रिपब्लिक डे परेड में इंडियन आर्मी कंटिंजेंट और इक्विपमेंट के बारे में बताने के लिए किया गया है। Ladies and gentlemen, the press brief will be presided over by Major Navraj Dhillon, Vishisht Seva Medal, Chief of Staff, Delhi area. At this stage, I will firstly acquaint you all with the proceedings. To start with, the Chief of Staff will brief us all about the Indian Army's contingent and equipment taking part in the 77th Republic Day Parade. Thereafter, Air Commodore Manish Sabharwal, Vishisht Seva Medal from Headquarter Integrated Defence Staff would brief us about the Tri-Services Tableau. Post that, the House will be open for questions. May I request people asking questions to kindly raise your hand. Once nominated, kindly introduce yourself and the media house you represent. I would also request that kindly restrict your questions only to the Republic Day Parade, contingent and the equipment, and no operational questions will be entertained. Thereafter, various contingent commanders are here with us for interaction with you all. Now, before I ask the Chief of Staff to address us all, I will take this opportunity to introduce the General Officer. Major Navraj Dhillon, Vishisht Seva Medal, was commissioned into the 42nd Armored Regiment in December 1991. The General Officer is a third generation Army officer with the fourth generation already in service. A graduate from Defence Services Staff College, Wellington, High Command course from the Army War College, Mau, now Dr. Ambedkar Nagar, and the prestigious National Defence College, New Delhi. For his distinguished service spanning over 3.5 decades, including various staff, instructional and command tenures, the General Officer was conferred the Vishisht Seva Medal in January 2025. The General Officer assumed the appointment of Chief of Staff, Delhi area in May last year. May I now request the Chief of Staff to kindly address the gathering. Sir. Thank you. जय हिंद। मैं इस मीडिया ब्रीफ में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और हमारी सबकी तरफ से आप सबको इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको 77th रिपब्लिक डे परेड जो कि 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होगी और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो कि 29 जनवरी को विजय चौक में आयोजित होगी, इनके संचालन और होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। परेड करीब 90 मिनट की होगी। ये 10:30 बजे सुबह आरंभ होगी और रायसीना हिल विजय चौक से होती हुई कर्तव्य पथ पे जाएगी और वहाँ से इंडिया गेट, तिलक मार्ग होते हुई लाल किले तक जाएगी। परेड का कार्यक्रम और सीक्वेंस इस प्रकार से होगा। आपको जैसे पता है, गणतंत्र दिवस के दिन हम देश के वीर सैनिकों को याद करते हैं और नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। माननीय प्रधानमंत्री जी रीथ लेइंग तथा श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे, जिसके बाद आगे की गतिविधियां आरंभ होंगी। माननीय राष्ट्रपति महोदया परेड की सलामी लेंगी। उनके आगमन पर राष्ट्रगान के दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस साल परेड के चीफ गेस्ट हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी एंटोनियो लुइस सैंटोस डी कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हर एक्सेलेंसी मिस अर्सुला वॉन डर लियन।
यूरोपियन यूनियन का दस्ता एक कर्नल रैंक के अधिकारी लीड करेंगे और उनके साथ 4 ध्वज लेकर फ्लैग बेरर होंगे। इस वर्ष परेड के आर्मी दस्ते एक रणभूरी व्यूह रचना यानी कि बैटल एरे में कर्तव्य पथ से निकलेंगे। बैटल एरे का मतलब है कि विभिन्न दस्तों को युद्ध के दौरान प्रयोग होने जैसा दिखाया जाएगा। I will now elaborate on this unique conduct which is being showcased for the first time in the Republic Day parade within the, of course, parade parameters. It's a combatized depiction of an offensive formation of the ready, resilient and responsive Indian Army. The array illustrates an offensive led by intelligence, surveillance and reconnaissance elements. The mechanized forces with an aerial support aviation component is the immediate combat and battle shaping punch in this formation that is being depicted. Special forces provide the high risk conventional edge. They'll be on various specialist platforms employing autonomous systems. The vital boots on ground element will be showcased in this battle grouping. Along this also is the long range surveillance and targeting ability of the newly raised drone and loitering munition units to hit targets in depth on actionable intelligence. Indigenous long range vectors of the artillery are on parade with surface to surface indigenous long range vectors of the RT, also along with surface to surface rocket and strategic missile capability. So all this is forming part of the formation which is being depicted moving on the parade. In the formation, the air defense is provided by short range and medium range surface to air capability by these combat support elements. So this land and aviation battle array advancing as an entity has the ability to be networked with data centricity, to therefore observe and strike up to a few hundred kilometers inside strategic depth of the enemy. Distinctive logistics components with automation and specialist animal capability will bring up the rear of the array. You will hence witness a tribute to the success of Operation Sindoor, plus the eminence of jointness, Atmanirbhar Bharat and innovation. तो साथियों, विशेष रूप से ये रणभूमि की रचना जिसके बारे में मैंने बात की, ये आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता को प्रदर्शित करेगी। अब मैं आपको परेड के बारे में बताऊंगा। परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अवनीश कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल ये चौथी बार परेड में हाजिर हैं और परेड के सेकंड इन कमांड मैं होऊंगा। और इस साल परेड की स्ट्रेंथ जो हिस्सा लेने वाले लोग हैं वो करीब 6050 के आसपास है। और मुझे ये भी गर्व महसूस होता है बताने के लिए कि हमारे साथ हमारे परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र अवार्डीज परेड के अंदर शामिल होंगे। इस साल हमारे साथ होंगे सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट संजय कुमार और अशोक चक्र विजेता होंगे मेजर जनरल CA पीथावाला और कर्नल D श्री राम कुमार। जो इक्विपमेंट पहली बार परेड में इस बार आपको दिखाई देगा, शक्तिवान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी, भैरव बटालियन, ये सब नई रेजिंग्स हैं और पहली बार आपको परेड में दिखाई देंगी। एडवांस्ड टोवर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम जिसको एटैक्स भी बोला जाता है, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, ये आपको प्लेटफॉर्म में माउंट होके दिखेंगे इस बार। रगेड टेरेन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जिसको RTTS भी बोला जाता है, रोबोटिक डॉग्स, ड्रोन्स, लॉइटरिंग munitions, और ये सब इस बार आपको कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में माउंटेड दिखाई देंगे क्योंकि जो पूरा इस बार संचालन हो रहा है वो कॉम्बटाइज है। स्काउट्स का मार्चिंग कंटिजेंट पहली बार आ रहा है
और आपको स्पेशलिस्ट सर्विस एनिमल्स जैसे कि विक्टोरियन कैमल्स, ज़ंस्कार पोनीज, रैप्टर्स जिनको काइट्स भी बोला जाता है, ये आपको पहली बार इस साल परेड में दिखाई देंगे। संक्षेप में मैं आपको जिस बात की मैंने रचना की बात की थी बैटल एरे की, ब्रीफली बताऊंगा। मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स जो हैं ये लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं, और इस बार 61 कैवलरी जो हमारी एक हॉस्ट कैवलरी यूनिट है उसमें घुड़सवार आपको कॉम्बेटाइज्ड रोल में दिखाई देंगे। जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, चाहे वो हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल्स हों, T-90 भीष्मा और MBT अर्जुन, इनके ऊपर भी आपको ड्रोन्स, लॉइटरिंग मिशंस और ATGMs काउंटर UAS सिस्टम्स इस बार माउंटेड मिलेंगे। BMP-2 सारथ और नामिस 2 जो कि नाल मिसाइल कैरियर होता है शामिल हैं इस बार। और इन मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स के साथ हेलीकॉप्टर्स जो एयर में होंगे, शेपिंग द बैटलफील्ड कंपोनेंट, ये आपको ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, भारत की रुद्रा हेलीकॉप्टर्स जो कि एक आर्म रेप्टर होता है, अपाची AH-64E, और साथ ही साथ इसके प्रचंड जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। स्पेशल फोर्सेस डिटैचमेंट एक ऑपरेशन रोल में आपको दिखाई देगा इस बार, और इनकी विभिन्न गाड़ियाँ होंगी, और इसमें खासकर सबका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन इनके अंदर ऑल टेरेन व्हीकल से लेकर के आपको सब गाड़ियों पे रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, माइक्रो सर्वेलेंस ड्रोन्स इत्यादि, रोबोटिक डॉग्स, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। और जो ग्राउंड का दस्ता है, जो इन्फेंट्री माउंटेड कॉलम इस बार है, उसके अंदर भी विभिन्न गाड़ियाँ हैं, और इनको आप प्लेटफॉर्म में भी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल देखेंगे। इसके साथ साथ इस बार इन्फेंट्री मोटर सिस्टम जो मोबाइल मोटर सिस्टम होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। आर्टिलरी वेपन सिस्टम्स, शक्तिमान और दिव्यास्त्र, स्ट्राइक एंड सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, इसके अंदर ड्रोन स्वॉर्म्स से लेकर के लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस होंगे। ATAGS जिसको अमोक बोला जाता है, 155 mm इंडिजिनियस गन सिस्टम, उसके साथ ही धनुष अगेन 155 mm इंडिजिनियस सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और सरफेस टू सरफेस अटैक कैपेबिलिटी में सूर्यास्त्र जो कि यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, 150 से 300 किलोमीटर की मार करने वाला ये वेपन सिस्टम पहली बार आ रहा है। और ब्रह्मोस जिसकी मुझे नहीं लगता ऑफ सिंदूर के बाद आपको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। और इसके अलावा आपको जो हमारा एयर डिफेंस है, जिसकी बैटल एरे की बात की थी मैंने, एडी कवर, इसके अंदर आकाश वेपन सिस्टम और अबरा जो कि एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, 70 किलोमीटर की मार करने वाला आपको दिखाई देगा। लॉजिस्टिक्स एंड स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म्स, फॉर्ड एरिया में ड्रोन्स की फैब्रिकेशन, सस्टेनेंस और बाकी रिपेयर्स करने के लिए एक ड्रोन शक्ति गाड़ी आपको इस बार दिखाई देगी। और जो आखिरी आर्मी कंटिंजेंट होगा वो लॉजिस्टिक्स का होगा। हमारे सोल्जर्स को हिमालय और सियाचिन जैसी दुर्गम इलाकों में जो तैनात हैं, वहाँ पे एनिमल्स की बहुत योगदान होता है, वो इस बार आपको देखने को मिलेगा। और कंटिंजेंट के अंदर बैक्टीरियन कैमल्स, ज़ंस्कार पोनीज, रैप्टर्स, इंडियन और फॉरेन ब्रीड के डॉग्स, ग्लेशियर ऑल टेरेन व्हीकल इत्यादि व्हीकल पे माउंटेड आपको दिखाई देंगे इस बार। और जैसे कि आपको बताया गया है, कंटिंजेंट कमांडर्स हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं। तो ऑल ऑफ यू हु वांट टू इंटरेक्ट, ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम आफ्टर दिस। खासकर एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर इस बार IOC का एक टैब्ल्यू है। So this special army tableau commemorates of Sindoor and depicts our strategic planning process. Also as to how BrahMos was lethal for the enemy, and our AD defense systems, right from L-70 and Akash, right up to the strategic AD systems, provided the protective shield under Sudarshan Chakra. परेड के बारे में जो मार्चिंग कंटिजेंट्स हैं, इस साल आर्मी के 6 मार्चिंग कंटिजेंट्स हैं, जिसमें मिक्स स्काउट्स
ऑपरेशनल रोल में, द राजपूत रेजिमेंट कंटिजेंट, द असम रेजिमेंट, द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम द भैरव कंटिजेंट। नेवी और एयरफोर्स एक एक मार्चिंग कंटिजेंट से हिस्सा ले रहे हैं और इसके अलावा CISF, CRPF, IDBP, कोस्ट गार्ड, दिल्ली पुलिस, BSF, हमेशा की तरह जिनके कैमल कंटिजेंट आते हैं वो इस बार 2 हैं। परेड के अंदर 12 बैंड और मिलिट्री बैंड जो होते हैं और 8 पाइप बैंड हैं। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी परेड का आगाज़ B-17 अपाचे हेलीकॉप्टर से होगा। परेड के आखिरी चरण तक इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के 29 एयरक्राफ्ट आपको दिखाई देंगे, जिसमें 16 फाइटर और 4 ट्रांसपोर्ट और स्पेशल जहाज और 8 हेलीकॉप्टर। ये सब 8 अलग अलग फॉर्मेशन में फ्लाई करके जाएंगे। जहाँ तक कि इंडियन नेवी का सवाल है, मार्चिंग कंटिजेंट है इंडियन नेवी का इस बार, बैंड है और एक टैब्ल्यू जो कि नेवी की शान और इतिहास को बयां करेगा। टोटल टैब्ल्यू इस बार 30 हैं, जिसमें DMA का एक टैब्ल्यू है, इंडियन नेवी का है और एक वेटरन्स टैब्ल्यू भी शामिल है। स्टेट्स के 17 टैब्ल्यू हैं और 10 हैं मिनिस्ट्रीज़ के। अंत की तरफ परेड में एक 10 मिनट का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, जिसमें करीब 2500 आर्टिस्ट हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति और प्रगति का झलक प्रस्तुत करेंगी। CRPF और SSB के डेयरडेविल मोटरसाइकिल दस्ते भी हाजिर हैं और मुख्यतः इनमें वीरांगनाएं आपको दिखाई देंगी, अलग अलग फॉर्मेशन में कर्तव्य करती हुई। अब मैं आपको संक्षेप में बीटिंग रिट्रीट के बारे में बताऊंगा। 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आयोजन किया जा रहा है और इसमें मिलिट्री बैंड्स, पाइप एंड ड्रम बैंड्स, नेवी बैंड, एयरफोर्स और CAPF बैंड, जिसमें IDBP, CISF तथा BSF के शूरवीर शामिल हैं और ये विभिन्न फॉर्मेशंस में आपको मार्च करते दिखाई देंगे और इसमें इंडियन ट्यून्स बजाई जाएंगी और एक नए अंदाज में इस बार। सो टुवर्ड्स द एंड्स फ्रेंड्स, that is all that I have to say and thank you for being here. If there are any questions, we'll take them on. May I request the Yeah, please. Tri-Service Tableau. Now, Air Commodore Manish Sabharwal, Vishesh Seva Medal, will brief us on the Tri-Services tableau being fielded this time. जय हिंद देवी और सज्जनों, मैं एयर कमोडोर सबरवाल हेडक्वार्टर IDS की तरफ से आप सबको इस साल 2026 में जो झांकी जो हेडक्वार्टर IDS की तरफ से प्रस्तुत की जा रही है उसके बारे में अब अवगत कराऊंगा। ये बहुत ही अरसे के बाद हुआ है कि किसी झांकी को हमने एक थीम दी है और इस साल की थीम है ऑप सिंदूर, विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से विजय। ऑपरेशन सिंदूर अनफोल्डेड ओवर 88 hours as a calibrated assertion of national resolve through air information dominance, precision strikes, neutralized terror launch infrastructure, command and control nodes, logistics hub, air defense elements and ammunition storage, delivering decisive outcomes with minimum collateral damage. And India's message was unambiguous, that is, terror and blood will not flow together. This Tri-Service tableau, presented by Headquarter IDS, showcases the integrated application of force in Op Sindoor. The front section depicts the Su-30 MKI launching BrahMos, the deterrence posture of S-400, M777, L-70 Akash missile systems, and the rear section highlights the Rafale strikes and destruction of enemy air defense by kamikaze drones. You will also see the Warmate drone being depicted and a
person controlling the same will be on the W. We have tried to make a symbolic border in between, and you will see the entire action unfolding right in front of your eyes on this W. If you see it from the right to left, you will see the east is India and west is, of course, Pakistan. We have a 3D model which is just placed just outside in the corridor. If you have any more questions, we would be delighted to answer it there. This operation, powered by Brand India Defence, shows that indigenous systems are not just catching up, but they are also leading. It highlights a nation where tri-service interoperability, civil-military fusion, decisive retaliation and real-time coordination from the backbone of power projection. In essence, the Operational Sindoor is not merely a military response. It is India's declaration that victory through jointness is now India's operational identity and strategic signature. A message broadcast with clarity and confidence that India will act with precision, defend with supremacy, punish with certainty, and march towards Atmanirbhar Viksit Bharat 2047 with unshakable resolve. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.